کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدح سرائی کرنا اے حق تعالیٰ، صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا، دستار والے ساز اور بربط پر اور ستار پر اونچی آواز کے ساتھ، کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا، میں تیری صنعتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا۔ اے خداوند تیری صنعتیں کیسی بڑی ہیں، تیرے خیال بہت عمیق ہیں، حیوان خصلت نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے۔ جب شریر گھاس کی طرف اٹھتے ہیں اور سب بدکردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فنا ہوں، لیکن تو اے خداوند عبدالآباد بلند ہے، کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے، سب بدکردار پراگندہ کر دیے جائیں گے، لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانند بلند کیا ہے، مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے، میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا، میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے۔ صادق کھجور کی درخت کی مانند سرسبز ہوگا، وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں۔ وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے، وہ بڑھاپے میں بھی گرومند ہوں گے، وہ تر و تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے، وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا اب بھی ہیں اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ ازلی ربی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے یسوع میں فضل کیا اور ہمارے لیے یہ ممکن کیا کہ ہم یہاں پر اکٹھے ہو کر تیری عبادت کر سکیں۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور تو اپنے لوگوں کے درمیان تخت نشین ہوتا ہے۔ خداوند ہمارا ایمان ہے کہ تو یہاں پر موجود ہے، اور جہاں بھی تیرے ایماندار لوگ جمع ہوتے ہیں تو اپنا تخت وہاں پر لگاتا ہے اور اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند اپنی حضوری کے وسیلے سے تمام آنے والوں کو برکت دے، اور خاص طور پر خداوند جو آن لائن لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں ان پر بھی تیری برکت مانگتا ہوں۔ تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں چھو اور ان کے ساتھ ہو، ان کی رہنمائی اور حفاظت کر، اور تیرا فضل و رحم ان کے ساتھ رہے۔ اور آج جتنے لوگ خداوند ہمارے ساتھ عبادت میں آن لائن یا فزیکلی شامل ہوں گے، خداوند آج اس عبادت کے وسیلے سے وہ برکت پائیں۔ جو لوگ کسی پریشانی، دکھ، تکلیف یا بیماری کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے، خداوند آج اس عبادت کے وسیلے سے معجزات کو وصول کریں، اور تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا نام ان کی زندگی میں عزت اور جلال پائے۔ خداوند ہم سب کے ایمان کو مضبوط کر، ہمارے خیال اور دھیان تیری طرف لگ جائیں۔ خداوند جتنے لوگ پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں تیری عبادت کے لیے جمع ہوں، تیرے لوگ محفوظ ہو جائیں، اور خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے، اور ان عبادات کے وسیلے سے صرف اور صرف یسوع کا نام سر بلند ہو۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے بھی ہم برکت پائیں اور یسوع کا نام اونچا ہو سکے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے ایماندار مسیحوں کو، ایماندار لوگوں کو ایمان میں مضبوط کر، تاکہ پاکستانی کلیسیا اور پوری عالمگیر کلیسیا ایک زندہ کلیسیا اور گواہی دینے والی کلیسیا بن سکے۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔
सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है जिन पर हम ईमान रखते हैं, और जब हम मिलकर अपनी ज़ुबान से इसका इकरार करते हैं तो हम अपने मसीही ईमान को मजबूत बनाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस के हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक खुले कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 66 गाएंगे। ज़बूर नंबर 66 सारे लोगों सारे रब नूं धन्यवाद आख्या गाओ। ज़बूर नंबर 66 दूजा हिस्सा, ज़बूर नंबर 66, Psalm 66। सारे
अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं और इस दुआ में मिसेस सुरैया सरफराज हमारी रहनुमाई करेंगी। हम खुदा का शुक्र करेंगे इस जगह के लिए और एफसी कॉलेज के लिए जहाँ पर हम आज़ादी के साथ इबादत कर सकते हैं। एफसी कॉलेज के लिए खुदा की बरकत मांगेंगे, दुआ करेंगे खुदावंद अपने फजल से इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। हम अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, खुदावंद हमारी कलीसिया को बरकत दे, कलीसिया को जिंदा कलीसिया, गवाही देने वाली कलीसिया बनाए। और इसके साथ हम पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए दुआ करेंगे कि पूरी दुनिया के मसीही लोग ईमान में मजबूत हो सके। हम पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पाकिस्तान में अमन और सलामती और अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और मिसेस सुरैया सरफराज दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदा के हुजूर अपने सरों को झुकाएंगे। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र, हम तेरी तारीफ करते हैं और तुझे मुबारक कहते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए, तेरा शुक्र करती हूँ। आज तेरा पाक सबत का दिन है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मनाया जाए 100 गुना भला है। खुदा का खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इस जगह के लिए। खुदावन, तूने हमें इस खूबसूरत जगह पे रखा और खुदावन तूने हमें बड़ी आज़ादी दी है कि हम जब जी चाहें तेरे पास आ सकते हैं। और खुदावन, जबकि दुनिया में बहुत हलचल है, मुल्क पाकिस्तान में खुदावन बहुत सी जगहें बंद हैं, तो भी तूने हमें ये फजल दिया है कि हम यहाँ मिलकर तेरी पाक बारगाह में आ सकते हैं, तेरी मुकद्दस हैकल में आकर तेरी तारीफ कर सकते हैं और खुदावन तुझे मुबारक कह सकते हैं। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं। ऐ खुदावन, एक एक शख्स पर तो अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। तेरे खादमों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, तो अपना आसमान अपने बंदों के लिए खोल दे और पाकों की हजूरी और मामूली से मामूल कर दे। खुदा, आज हमने से हर एक को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ एफसी कॉलेज के लिए कि खुदा, ये कॉलेज तूने अपने लोगों के लिए कायम किया है और इस कॉलेज के वसीला से तेरे नाम को जलाल मिलता है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा खुदा, मैं इन कलीसियाओं को तेरे हुजूर याद करती हूँ जो इज़ार सानी में हैं खुदा, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा दुख उठा रहे हैं। ऐ खुदा, तो अपने लोगों को ईमान की मजबूती दे, अपने लोगों की हिफाजत कर, अपने लोगों के लिए खुद आतशी दीवार बन जा खुदा का खुदा। ऐ बाप, मैं दुआ करती हूँ इस कॉलेज के फैकल्टी के लिए दुआ करती हूँ, तमाम लोग जो यहाँ पे जॉब करते हैं उन सबों पर तेरा हाथ बढ़े और ये कॉलेज दिन दुनिया रात चौगनी तरक्की करे। खुदा का खुदा, खुदा मैं दुआ करती हूँ कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकतों से माला माल कर। खुदा, जिनके पास जॉब्स नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड कर खुदा उनका खुदा। और खुदा, जो दुख बीमारी तकलीफ में यहाँ आए हैं खुदा, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर और उन पर अपना हाथ बढ़ा दे खुदा उनका खुदा। इस वक्त हमारा तेरे हुजूर प्रस्तश करना, इबादत करना, कलाम सुनना खुदा का खुदा हम सबों के लिए 100 गुना फैलाने का सबब हो खुदा। कलीसिया जो तेरा बदन है रोज़ रोज़ तुझ में बढ़ता और तरक्की करता जाए खुदा का खुदा। इस वक्त मेरी छोटी सी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, जो सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम ज़बूर 42 गाएंगे। ज़बूर नंबर 42, पानी दे सोते अभी घर नहीं जुल कर रहाई। ज़बूर नंबर 42, ज़बूर नंबर 42, साम 42।
शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है कि हम बतौर ईमानदार इकट्ठे होकर एक दिल होकर जब दुआ मांगते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। आए हम सब मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में से जिन लोगों ने दरखास्त की है कि उनकी दुआ की जाए, उनके लिए मिलकर दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए। तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में फजल किया और मुमकिन किया कि हम इकट्ठे हो सके। तेरा शुक्र करते हैं यीशु नाम के लिए जो सब नामों से आला है, उसके नाम में फतह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और खुदावंद हम ये ईमान रखते हैं कि हम ईमानदारी इकट्ठे हैं और तेरे बेटे यीशु पर जिसने मौत पर फतह पाई उस पर ईमान रखते हैं। इसलिए बड़े ईमान के साथ खुदावंद अपने लिए और अपने घरानों के लिए तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा मांगते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से हम में से हर एक खुदावंद यहाँ पर शिफा के लिए जमा हुआ। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी, कमजोरी, जिस्मानी दर्द यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम सब मिलकर तेरे बेटे यीशु के नाम से अपनी शिफा मांगते हैं। हम फतह पाते हैं, यीशु के नाम से फतह पाते हैं, बीमारियों पर, जिस्मानी तकलीफों पर, दर्द पर यीशु के नाम से फतह पाते हैं। खुदावंद तुम्हें छू और शिफा बख्श दे। हमारे घरानों के अफराद को खुदावंद तू छू, हमारी कलीसिया के हर एक फर्द को तू छू दे ताकि रूहानी शिफा, जिस्मानी शिफा हमारी जिंदगी में आ जाए। खास तौर पर खुदावंद जिन्होंने दरखास्त की है कि उनकी दुआ की जाए, उन्हें तेरी हुजूरी में याद करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद भाई शहजाद डेविड के लिए, भाई परवेज यूसुफ के लिए, भाई नदीम जॉर्ज के लिए, मिसेस महबूब के लिए, बेटी कोमल के लिए, मिसेस सरोया के लिए, बहन फोजिया के लिए, मिसेस रुबीना तस्नीम के लिए। इसी तरह से दुआ करते हैं यूनुस साहब के लिए और उनके सारे घराने के लिए, मिसेस सरवर के लिए, भाई फिलिप के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए दुआ करते हैं, भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग किसी भी तकलीफ में मुब्तला हैं सबको तेरी हुजूरी में याद करते हैं। यीशु के नाम से सभी शिफा पा जाएं, इन सब की जिंदगी में यीशु के नाम के वसीले से मौजज़ा हो जाए। हर एक तकलीफ, दर्द, बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे और खुदावंद ये लोग शिफा पाएं। इसी तरह खुदावंद कोरोना पेशेंट्स के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। पूरी दुनिया में से खुदावंद इस बीमारी को खत्म कर, दुनिया को बहाल कर ताकि लोगों की मुआशी सरगर्मियां बहाल हों, लोगों की इबादत आज़ादी के साथ हो सके। खुदावंद तू बरकत दे, दुनिया को, जमीन को बहाल कर। और खुदावंद दुआ करते हैं हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं, यीशु के नाम से उन्हें तेरी बरकत मिले, तेरी मेरास उन्हें मिले, तेरी तरफ से उनके लिए मौजज़ा हो जाए। यीशु के नाम से तेरा फजल उन पर हो और खुदावंद वो औलाद की नेमत पाएं। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और हर दफ़ा मैं दरखास्त करता हूँ कि जब क्वायर गीत गाती है तो ज़रूर उनके साथ गाया करें, क्योंकि उनके गीत ये सियालकोट कन्वेंशन से होते हैं ज़्यादातर, इसलिए आप भी ज़रूर इनको गाएं ताकि ये जो गीत क्वायर तैयार करती है वो कलीसियाई गीत बन सके और हम बतौर कलीसिया में मिलकर गा सकें।
चंद एक ज़रूरी एलानात हैं। आइंदा अतवार अशायर बानी का अतवार है। महीने के दूसरे अतवार को हम कलीसियाई दस्तूर के मुताबिक हम अशायर बानी की इबादत करते हैं, इसलिए आप जो लोग इस दफ़ा नहीं आ सके उन्हें भी ज़रूर इत्तला करें ताकि आइंदा अतवार जब वो खुदावंद के घर में आएँ तो अपने आप को खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए तैयार करके आएँ। इसके साथ ही SOPs के हवाले से आप लोगों से दरख्वास्त है, हर अतवार हम दरख्वास्त करते हैं और आपका शुक्रिया आप मानते भी हैं, लेकिन याद दहानी इसलिए करवाते रहते हैं कि आपको एहसास रहे कि ये आप लोगों की सेहत के लिए, ये आप लोगों की बेहतरी के लिए। आप जानते हैं कि आजकल लॉकडाउन है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम इबादत के लिए जमा हो सकते हैं। इसलिए लॉकडाउन SOPs को, फासले को, मास्क को, हाथ सैनिटाइज करवाना, ये जो हम फॉलो करते हैं SOPs, इनको ज़रूर अपने सामने रखें। ताउन करें सभी के साथ, हमारे टीचर्स के साथ ताउन करें ताकि आप लोग महफूज रह सकें। और ख़ासतौर पर इस बात के लिए भी हम दुआ गो हैं कि खुदा जल्द इस वबा को ख़त्म करे और दोबारा से बातें बहाल हो सकें। ज़रूर अपने घरेलू दुआओं में, ख़ानदानी दुआओं में कोरोना के खात्मे के लिए दुआ करते रहा करें। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सुनें। पुराने अहदनामे में से ज़बूर 42, ज़बूर की किताब और उसमें से 42वां ज़बूर। आए हम कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए खड़े हों। Psalm 42, ज़बूर नंबर 42, पुराने अहदनामे में से ज़बूर की किताब में से ज़बूर 42। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मशकील, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। इन बातों को याद करके मेरा दिल भर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके निजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। ऐ मेरे खुदा मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यरदन की सरजमीन से और हरमोन और कोहे मिस्पार पर से याद करता हूँ। तेरे आबशारों की आवाज से गहराओ गहराओ को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गई, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा। बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया। मैं दुश्मन के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूँ। मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते हैं तेरा खुदा कहाँ है। ऐ मेरी जान तू क्यों गिरी जाती है, तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है। खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सताइश करूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले हम गीत नंबर 354 गाएंगे। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूह में ये गीत गाते हुए हम कलाम के सुनने के लिए अपने दिलों को तैयार करेंगे। गीत नंबर 354, गीत नंबर 354, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है। और इसके हम 2 मिसरे गाएंगे। तेरे गुनाह चाहे हो के रमजी, यहाँ तक। Bye.
खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमारे दरमियान एक गेस्ट स्पीकर मेहमान वाइज मौजूद हैं जो खुदा के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। हमारे दरमियान आज एल्डर अख्तर मसीह साहब मौजूद हैं। एल्डर अख्तर मसीह साहब लाहौर प्रेस्बिटेरी के वाइस मॉडरेटर हैं और इन्होंने लाहौर प्रेस्बिटेरी के मॉडरेटर की हैसियत से भी खिदमत सर अंजाम दी है। मुख्तलिफ पाकिस्तान में जो चर्च से पैरा चर्च के अदारे हैं उनमें मुख्तलिफ पोजीशंस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में ट्रेजर के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दी, इस वक्त बोर्ड मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं। स्क्रिप्चर यूनियन के साथ मुंसलिक हैं। मुख्तलिफ मसीही इदारे जो पाकिस्तान में पूरे मुल्क में खिदमत करते हैं उनके साथ उनकी खिदमत। इसके अलावा खुदावंद ने बरकत दी है और फैसल बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और हमारा ये ईमान है कि जब लोग खुदावंद के साथ चलते हैं उसकी खिदमत करते हैं तो खुदा दुनिया तौर पर भी अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद ने अपने बंदे को दुनिया तौर पर भी बरकत दी है और इसी तरह से खेत में भी खिदमत में भी कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि आज वो हमारे दरमियान आ सके। अख्तर साहब, हम आपको कलीसिया की तरफ से वेलकम करते हैं और शुक्रगुजार हैं कि आपने मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और खुदा के कलाम को बांटने के लिए हमारे साथ आए। मैंने ये भी दरख्वास्त की कि क्योंकि हम ज़बूर की सीरीज कर रहे हैं तो आप खुदा के कलाम में से ज़बूरों में से हमारे लिए कलाम लेकर आएँ और खुदावंद ने फजल किया और आज वो ज़बूर 42 में से खुदावंद के कलाम को हमारे साथ बांटेंगे। मेरी दरख्वास्त है अख्तर साहब से कि वो आएँ और खुदा के कलाम को हमारे साथ बांटें। बरकत नाम में आप सबको सलाम कि उसने मेरे लिए मुमकिन किया है कि आज मैं इस कॉन्ग्रेगेशन में आऊं, इनके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत में शरीक हूं और खुदा के पाक कलाम को भी आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं खुदा के रूस के साथ ही साथ सेशन मॉडरेटर आली जनाब फादर रोबन कमर साहब और पूरी सेशन के मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आप सबका भी बतौर कांग्रीगेशन मैं शुक्रगुजार हूं। खुदा के पाक कलाम को शुरू करने से पहले मैं जरूर आपको एक कमेंट करना चाहता हूं, मैं तारीफ करना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कि मैं इन अयाम में कंपैरेटिवली जहां भी गया आप लोग SOPs को बेहतर तौर पर फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है, बेशक हमारी हिफाजत निगरानी का जिम्मा तो खुदा ने रखा है, लेकिन जिस तौर पर भी हमें हुकूमत वक्त अहकामात जारी करती है, हमें उन्हीं में रह के अपनी इबादत को और अपने रोज़मर्रा के औकात को आगे बढ़ाना है और इस तौर पर ना सिर्फ हम खुद महफूज रहते हैं बल्कि दूसरे भी इससे महफूज रहते हैं और हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस भी बनते हैं। चूंकि आप खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर या मज़ामीर की जो कुतुब हैं उनमें गुज़श्ता एक साल से तकरीबन मुझे पता चला 2020 के आखिरी अयाम से इसी किताब के या इन कुतुब 5 चुके किताबें हैं, इस ताल्लुक से ही आप खुदा के पाक कलाम पर गौर कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, खुदा का शुक्र है। और मैं भी इस तौर पर पादरी साहब ने आप सब की खिदमत में ये बयान किया कि ज़बूर 42 जो है आज थोड़े वक्त के लिए इसी ज़बूर के ताल्लुक से हम खुदावंद के पाक कलाम में से अपने लिए सीखेंगे। और मेरा ये ईमान है कि जिस तौर पर हम सब खुदा के पाक घर में इन इबादत में शामिल होकर बरकत हासिल करते रहे हैं, आज भी हम सब खुदा के पाक नाम को जलाल और बुजुर्गी देने के लिए जब यहाँ पे जमा हुए हैं तो हम जरूर इससे बरकत हासिल करके अपने घरों को जाएंगे, खुदावंद का शुक्र अदा करते रहेंगे। ज़बूर 42 जो बाइबल मुकद्दस आजकल बाइबल सोसाइटी जो है वो प्रिंट कर रही है, वहां पे
نہ صرف زبور 42 بلکہ زبور 43 کے وہاں پہ کیپشن جلا وطن آدمی کی پکار لکھا ہوا ہے. اور خداوند کے پاک کلام کو آپ سب پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں. شروع کے ایام میں یہ 42 اور 43 اکٹھا ہی زبور تھا, لیکن بعد میں 42 اور 43 زبور جب ہمیں یہ کتاب مقدس میں ملتا ہے تو اس طور پر ملتا ہے, تو میں 43 زبور اس لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ کسی اور زاویے سے کوئی اور خدا کا خادم یا آپ کے کلیسے پاسبان آپ کے لیے خدا کے پاک کلام میں سے آنے والے دنوں میں شیئر کریں گے. جلاوطن آدمی کی پکار. زبوروں کے تعلق سے کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ 25 سے 30 منٹ ہوتے ہیں, تو یوں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان کتابوں کا, 5 کتابوں کا, یہ آپ نے اکثر خدا کے خادم سے یا دیگر خادموں سے سنا ہوگا. اس کو سکپ کرتے ہوئے میں زبور 42 تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر جو مختلف خدا کے لوگ ہیں, جو علم الہیات کے ماہر ہیں یا جو مذہبی تاریخ کو دوسروں کے لیے لکھتے ہیں, اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبور جو ہے یہ خدا کے بندہ داؤد نے لکھا ہے, اور بہت سو کے خیال میں یہ کورے لاوی کوئی جو ان دنوں جب خدا کا بندہ داؤد اپنے بیٹے ابی سلوم کی بغاوت کے دنوں میں یروشلم سے یردن کے پار بنی اسرائیل کی جو شمالی سرحد ہے وہاں پہ وہ مقیم ہوتا ہے, اور جلا وطن ہے, یروشلم سے دور ہے. یہ پورا زبور آپ کی خدمت میں اسی لیے تلاوت کیا گیا کہ تھوڑا ذہن میں رہے. جلا وطن ہے اور خدا کے گھر سے بھی دور ہے. اپنے جتنے بھی نہ صرف خدا کا بندہ داؤد جو بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہے, نہ صرف وہ بلکہ جتنے اس کے رفقا کار ہیں, اس کے ساتھی ہیں, وہ سبھی اپنے اپنے گھروں سے بھی دور ہیں اور خدا کے گھر سے بھی دور ہیں, اور جلا وطنی کی حالت میں ہیں. اور پہلی ہی آیت ہم نے جو پڑھی وہاں پہ ہم نے سنا کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی آئے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے. اور پھر دوسری آیت ہے کہ میری روح خدا کی زندہ خدا کی پیاسی ہے, میں کب جا کر خدا کے حضور حاضر ہوں گا. عزیزو, کلام مقدس اس بات کے لیے ہمیں ہر وقت آگاہ کرتا رہتا ہے کہ میں اور آپ جب آج اس روح زمین پر زندہ ہیں تو ہم نئے عہد کے ایماندار ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آخری زمانہ کے ایماندار بھی ہیں. اور کلیسیا بسیط مجموعی اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ کب ہمارے خداوند یسوع مسیح اپنی پوشیدہ آمد میں آئے اور ہم اس نجات کی برکت کی جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ ہمیں حاصل ہوئی ہے اس کی انتہا کو دیکھیں کہ کب ہم اس بدن کو جو زندہ ہوں گے ان کا تبدیل ہوگا, اور جو سو جائیں گے وہ غیر فانی حالت میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے, اور ایماندار اس جسم میں رہ کر
اسی بات کے لیے ایمان کی اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھتا ہے اور اپنے اندر اس تبدیلی کے عمل کو جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے اور خدائے روح القدس کو اپنے اندر بسانے کے وسیلہ سے وہ جو شروع کرتا ہے اپنی شخصی زندگی میں، اس میں پوری زندگی اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اکثر ہم اسے ٹرانسفارمیشن کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب یہ جو خدا کا بندہ پرانے عہد میں ہے اور جلا وطنی کی حالت میں ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ اپنے گھر سے دور ہے، خدا کے گھر سے دور ہے، اور وہاں پہ وہ اس بات کا آرزو مند ہے، وہ یاد کرتا ہے گزرا ہوا وقت کہ کس طور پر وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے پاک گھر میں وہ جاتا اور وہ خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کرتا اور خدا کے لوگوں کی رفاقت میں رہتا، اور اس بات کے لیے وہ ہمیشہ اتراتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کی روح جو ہے وہ تڑپ رہی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ہے۔ جسمانی طور پر بھی وہ نہ صرف اپنے دشمنوں کے جو سرحد کے پار ہوں گے، بلکہ وہ ابھی سلوم کے خوف سے بھی وہاں پہ جسمانی طور پر ایک ڈر کی حالت میں ہے، جانکنی کی حالت میں بھی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب مارے جائیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنی روح میں وہ اس بات کے لیے پریشانی کے عالم میں ہے، اور وہ اس وقت کو نہ صرف یاد کرتے ہوئے پریشانی کے عالم میں رہتا ہے، بلکہ وہ اس بات کا آرزومند ہے کہ میں پھر خدا کے گھر میں خدا کے لوگوں کے ساتھ جاؤں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بحال کروں۔ بے شک خدا کے لوگ کسی وقت اور کبھی بھی خدا کو یاد کر سکتے ہیں، خدا کی عبادت، خدا کی پرستش کر سکتے ہیں، لیکن پرانے عہد نامہ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو جو خیمہ اجتماع ہے یا جب ہیکل تعمیر ہو جاتی ہے تو خدا کے گھر میں جانا جلوسوں کی صورت میں، خدا کے لوگوں کی رفاقت میں، اسی کو خدا کی حضوری اکثر اوقات سمجھا جاتا۔ اور خداوند خدا اس بات کے لیے خود اس نے اپنی قوم کو نہ صرف شریعت دی، بلکہ اس بات کے لیے ان کو تیار کیا کہ ان کے اس سارے سفر میں، جس میں وہ مصر کی غلامی میں سے نکل کر اور وعدہ کیے ہوئے ملک میں جائیں گے، وہ خود ان کے ساتھ شامل رہے، اور اس ملک کے ملنے سے پہلے وہ خیمہ اجتماع اور ملک کے ملنے کے بعد ہیکل میں اپنی حضوری کے وسیلہ سے وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہتا، اور خدا کے لوگ اپنے آپ کو دنیا کی دیگر اقوام سے الگ اس طور پر سمجھتے ہیں کہ ان کا خدا جو قادر مطلق خدا ہے وہ ان کے درمیان میں رہتا ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ زبور 42 کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں تو ہرنی جو ہے وہ پانی کے نالوں کو ترستی ہے اپنی پیاس بجانے کے لیے، ہم سبھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن جو جلا وطن آدمی جو پکار کر رہا ہے، جو خدا، جس کی روح جو ہے وہ خدا سے ملنے کے لیے ترس رہی ہے، اس کی حضوری،
اس کی معموری میں رہنے کے لیے ترس رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں اس بات کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ پہلا تسالونیکیوں کا خط اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا یہ جو بدن ہے یہ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، روح، جان اور بدن۔ ہمیں ہر ایک کے اندر ایک روح ہے، ہمارا ایک بدن ہے، ہماری ایک شناخت ہے، اور جو سپرٹ ہے، جو جان ہے، یہ خدا ہے۔ پیدائش کی کتاب میں ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اپنا دم جو ہے وہ انسان کے اندر پھونکا، اور تبھی وہ جیتی جان بنتا ہے۔ اور پھر ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ جب آدم سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو خدا کی اسپرٹ جو ہے وہ اس سے جدا ہو جاتی ہے، آدم زندہ رہتا ہے۔ اور یوں ہمارے بدن میں جب تک یہ تینوں چیزیں موجود رہتی ہیں تب تک ہمارا خدا کے ساتھ تعلق بھی استوار رہتا ہے۔ لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، اس کی آنکھیں گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے، اس کی حضوری میں قائم رہنے کے لیے ہمیں پاکیزہ رہنا ہے، پاکیزگی کی حالت میں زندگی بسر کرنی ہے، اور پرانے عہد میں خدا کی شریعت کو ماننا اور خدا کے حکموں پر عمل پیرا ہونا، اور اگر خدا کے لوگوں سے دانستہ طور پر یا نادانستہ طور پر گناہ ہو جاتا، خطا ہو جاتی، تو پھر اس کے کفارہ کے لیے قربانی خدا کے حضور گزراننا، یہ بھی خدا کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق ہے۔ میرے عزیزو، عبرانیوں کا مصنف جو ہے وہ نامہ باب میں لکھتا ہے کہ تقریباً شریعت میں سبھی چیزیں خون کے وسیلہ سے پاک کی جاتی ہیں، اور یوں یہ جو جلا وطن آدمی ہے، اگر ہم 42 زبور کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ اپنی اس حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ خدا سے دور اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس وقت میں خدا کی حضوری سے دور سمجھ رہا ہے، اور اپنے کنیکشن کو خدا کے ساتھ بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور یوں یہ انسان کے اندر جس کو خدا نے اپنی صورت، اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے، تو ہمیشہ اس کے اندر جو جان ہے، جو دم ہے، جو اسپرٹ ہے، یہ خدا کی حضوری اور خدا کی معموری کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے یہ ایک تحفہ ہوتا ہے، بروکن ہارٹ از اے گفٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بھی اس حالت میں ہوتا ہے وہ کسی ایسے سیویئر کی، نجات دہندہ کی تلاش میں رہتا ہے کہ اس کو پھر سے جوڑ دے، اس کے دل کو پھر سے پورا کر دے، اس کی شخصیت کو پورا کر دے، وہ پھر سے بحال ہو جائے۔ اور یوں جب ہم پرانے عہد سے نئے عہد میں داخل ہوتے ہیں، اس وقت خدا کی حضوری وہ ہیکل میں یا خیمہ اجتماع کی صورت میں تھی، وہ انسان کو اپنی قربت میں رکھتی، اور اگر گناہ سرزد ہوا، میں نے عرض کیا کہ وہ اس کو بھی خون بہا کے وسیلہ سے معاف خدا کر دیتا۔ لیکن جب ہم نئے عہد میں آتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح جو تثلیث کا، جس پر پورے مسیح ہم ایمان رکھتے ہیں،
اس کا دوسرا قانون ہے وہ خدا بیٹا ہے. جب وہ خدا کے اس ازلی اور ابدی انتظام کے تحت مجسم ہو کر دنیا میں آتا ہے تو اس کے تعلق سے بھی عبرانیوں کا مصنف یہ لکھتا ہے کہ تو نے سوختنی قربانیوں اور بیل اور بکوں کی قربانیوں کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. اور وہ یہ فرماتا ہے کہ اے خدا میں آیا ہوں تاکہ تیری مرضی پوری کروں. اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کیا جو خدا ہے, کامل خدا ہے, اپنے آپ کو خالی کیا, انسانوں کے مشابہ بنا اس دنیا میں. اس نے عام انسانوں کی طرح اپنی زندگی بسر کی اور اس کی زندگی میں ہم سب جانتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے وہ جتنی بھی آزمائشیں جو مجھ پر اور آپ پر آج بھی آتی ہیں یا دنیا کے شروع سے لوگوں پر, ایمانداروں پر آتی رہیں, وہ خداوند یسوع مسیح پر بھی آزمائشیں آئیں. اور خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے خدا کے کلام کے وسیلہ سے ان آزمائشوں پر فتح پائی ہے. اور اس وقت کے جو فقیہ اور فریسی تھے وہ اس کی بے گناہ زندگی کو تسلیم کرتے تھے اور کوئی بھی ان کی زندگی میں گناہ ثابت نہیں کر سکتا. اور میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے, صلیبی موت کے وسیلہ سے نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا. اب جتنے مسیحی ایماندار خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, اسی وقت ان کی تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں. نہ صرف ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ ان کو ہمیشہ کی زندگی بطور تحفہ خدا عطا فرماتا ہے. اب میں اور آپ اس روح زمین پر زندہ ہیں تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر ابھی اسی وقت ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح آ جائے تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو آن لائن سن رہے ہیں سبھی تبدیل ہو جائے. تو یوں ایماندار کے لیے موت جو ہے وہ اب اتنی ڈراؤنی بالکل بھی نہیں ہے. ہم خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس جسم میں رہتے ہوئے گناہ پر فتح مند زندگی بسر کر سکتے ہیں, کیونکہ خدا کا بندہ پولس رسول غلاطیوں کے خط میں یہ لکھتا ہے کہ میں زندہ نہیں ہوں, میں نے گناہ کے اعتبار سے اپنے آپ کو مصلوب کر لیا ہے مسیح کے ساتھ اور اب مجھ میں مسیح زندہ ہے. تو یوں وہ اپنی اس زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے نام کرتا ہے. اور پھر اسی خط میں آگے لکھا ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں, جس طرح میں اور آپ ہیں, جو خداوند یسوع مسیح کے ہیں انہوں نے اپنی جسمانی خواہشوں کو اور جسمانی رغبتوں کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیب پر مصلوب کر دیا ہے. اب میں اور آپ اگر آج اس جسم میں زندہ ہے تو ہم پر گناہ کا اختیار نہیں ہے. جو روح القدس ہمارے اندر ہے یہ ہمیں یہ قوت دیتا ہے کہ ہم گناہ پر فاتح زندگی بسر کریں. اس آخری زمانہ میں, اس نئے عہد نامہ میں ہمیں بہت سے ایسے ایماندار ملتے ہیں. ہم ان کی گواہیاں سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ کس طور پر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک
बेहतरीन जिंदगी बसर की है और एक अच्छी गवाही दूसरों के लिए छोड़ी। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम आज भी अपनी इंसानी कमजोरी को या मारूसी गुनाह को, जो आदम के खता करने की वजह से बनी नौ इंसान में मुंतकिल हो गया था, और इस बात को हम पूरे तौर पर नहीं समझ रहे कि जो स्पिरिट जब गुनाह की वजह से इंसान से जुदा हो जाती है, तो खुदावंद यसु मसीह ने अपनी कुर्बानी के वसीला से, कफारा के वसीला से हर ईमानदार को इस काबिल कर दिया कि वो रिकनेक्ट हो गया है, वो खुदा के साथ फिर से रिकनेक्ट हो गया है। तो क्या मैं और आप खुदा की कुर्बत में, खुदा के जलाल के लिए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। खुदा का बंदा पुलिस रसूल ये फरमाता है कि वक्त के हिसाब से तो हमें ठोस ग़िज़ा खाने के काबिल हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी हमें दूध पीने की हाजत है। दूध बच्चों को दिया जाता है और जवानों को ठोस ग़िज़ा की जरूरत पड़ती है। जो मुझे और आपको इरशाद आज़म खुदावंद यसु मसीह ने आसमान पर जाते हुए दिया, हम उसको कैसे पूरा करेंगे? अगर हम जिस जिस हिस्सा में भी उम्र के हैं, उम्र के हिस्सा में हम हैं, तो अगर हम आज अपनी इंसानी कमजोरी को खुदा न खास्ता अक्सर औकात अपने गुनाह की ढाल समझते हैं, सुमरूसी गुनाह को, तो फिर हम ईमान की दौड़ में बहुत पीछे हैं। हमें अपने आप को हर वक्त, जिस मैंने शुरू में अर्ज किया कि जो रूह कुदस हमें बख्शा, उस वक्त खुदा उनके साथ होता था। पुराने अहद में खुदा उनके साथ होता था। कामा इज्तिमा में, हैकल में उनके साथ खुदा वहां मौजूद होता था। जो उनकी खुदा की मौजूदगी के तालिब होते, वो वहां पे चले जाते। बेशक खुदा उनकी हिफाजत का जिम्मेदार था, और जितनी भी तारीख आप बनी इस्राइल को पढ़ते हैं, वहां पे हम सब सीखते हैं कि जब जब खुदा के लोग खुदा के हुक्म पर अमल पैरा रहते, कोई दुनिया की कौम उनको नुकसान ना पहुंचा सकती, कोई मुमलकत उन पर फाते ना होती, बल्कि वो हमेशा फतहमंद जिंदगी बसर करते। कौमें उनको देखकर इस बात का इकरार करती और खुदा का खौफ करती कि इनका खुदा जो है वो कादिर मुतल्लक खुदा है, जो इनको रोटी भी देता है, जो इनकी हिफाजत भी करता है, जो इनके लिए जंग भी करता है, और इनको अपने परों के साए तले रखता है। जिस तरह बच्चा जो बाप जो है अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठा कर फिरता है, इसी तौर पर खुदा उनको उठाए उठाए फिरता रहा। लेकिन आज जब खुदा हमारे दरमियान में है, खुदा हमारे अंदर है, हमने भी गीत गाया कलाम से पहले, रूह की बारिश। हम अगर आज खुदा के रूह को मांगते हैं तो वो इसलिए है कि जो ईमानदारों की यहां पर जो रफाकत है, जो सब ईमानदार इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हुए हैं ताकि वो खुदा की हमदो सताइश करें, खुदा के कलाम को सीखें, खुदा की हुजूरी में अपनी शुक्रगुजारियां पेश करें, अपनी अर्ज़े मिन्नतें जितनी भी हैं वो उसके हुजूरी में गुजराने, बीमारों के लिए दुआ करें। लेकिन इसके साथ ही साथ वो ईमान में तरक्की करें। जब तक खुदा हम में सारे के अंदर भी है, यहां पे भी मौजूद है, और पूरी कायनात में हर जगह पे वो मौजूद है। और खुदा रूह कुदस उसने मेरे और आपके लिए और उन सब के लिए जो तब तक मरा मुनज्जी अपनी दूसरी आमद में नहीं आता, उस पर ईमान लाएंगे। और जब वो उस पर ईमान लाएंगे, रूह कुदस उनके अंदर आ जाएगा और फिर उनकी जिंदगी को तब्दील करेगा। लेकिन क्योंकि जो नेकी और अबदी का फल था बागे अदन में, वो तो इंसान ने खा लिया था। जिंदगी के
दरख्त को खाने से पहले खुदा ने उसे वहां से निकाल दिया था। अब नेकी और बदी का इम्तियाज इंसान के पास है। खुदा नेक है और हम उसके लोग हैं, तो हमें नेकी की पैरवी करनी है, क्योंकि नजात खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से है। और अगर आज हम उस वक्त खुदा के लोग और खुदा के हुक्मों पर अमल करते थे ताकि उसकी हुजूरी में रहें, उसकी ममूरी में रहें, आज अगर हम अच्छे काम करते हैं या करने की आरजू रखते हैं तो इसलिए है ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जो है इस जमीन पर जाहिर हो। मैं आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं आज अपने समेत आप सबके लिए चैलेंज छोड़ना चाहता हूं कि उस वक्त ये जिला वतन जो है, आप सब जिन्होंने ये स्टोरी सारी पढ़ी है अभी सलोम की बगावत की, तो हम सब जानते हैं कि अल्टीमेटली दाऊद बादशाह वापस आ गया था। अभी सलोम की बगावत कुचल दी गई थी और यूं उस जिलावतन आदमी की पुकार जो खुदा के घर में ईमानदारों की रिफाकत में आना चाहता है, उसकी दुआ कबूल हो गई थी। वो भी उसके साथ दाऊद बादशाह के साथ, या दाऊद बादशाह ने खुद लिखा हुआ है, तो वो सारे यरूशलेम में आ गए थे। उसकी बादशाहत भी बहाल हो गई और जितने जिला वतन थे अपने घरों में भी आ गए, खुदा के घर में रिफाकत भी रखने लगे। लेकिन आज हमारी चैलेंज ये है कि हम दुनिया में जब जिंदगी बसर करते हैं तो ईमानदारों की हालत जो है ये हमें बताती है कि ये खुदा में कितना तामीर हो चुका है। मेरे से तो चैलेंज ये छोड़े जा रहा हूं कि अपनी जिंदगी पर गौर करें। पेंडेमिक दूसरा साल चल रहा है, कितने हमारे अजीज हैं जो हम में आज नहीं है, और हम भी सभी मास्क पहने हुए हैं। क्यों? हमारे घर वाले, हमारे अजीज बहन भाई सभी नुकसान ना उठाएं। तो अगर ऐसी बात है तो हमें ये जिंदगी की अगर हम हिफाज करना चाहते हैं तो इसलिए करें ताकि मेरी और आपकी जिंदगी से खुदावंद यीशु मसीह का जलाल इस दुनिया के सामने जाहिर हो और हम एक अच्छी गवाही इस दुनिया में छोड़ के दें। अगर खुदावंद यीशु मसीह से उनके आने से पहले मेरा और आपका वक्त पूरा हो जाता है जो खुदा के हाथ में है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और आप सबकी तवज्जो के लिए मैं बहुत मुश्किल। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 292 गाएंगे। गीत नंबर 292, मैं नाबीना जग में फिरता राह कौन दिखाए। इसके साथ ही हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 292, गीत नंबर 292।
प्यास बुझाए। चमक उठी ये दुनिया सारी, चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी जोत प्यारी। चमक उठी ये दुनिया सारी, तेरी जोत प्यारी। हर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए। हर मन मेरा अंधियारे से तुझको आज बुलाए। चैन और रात तुझसे मिलती, चैन और रात तुझसे मिलती, ये सुतार बहारे। चैन और रात तुझसे मिलती, ये सुतार बहारे। जितना कहना जानता हूँ मैं तुझे बेशक सारे। जितना कहना जानता हूँ मैं तुझे बेशक सारे। तो करता था पाँव से मेरे, तो करता था पाँव से मेरे, मैं फूल के धारे। तो करता था पाँव से मेरे, मैं फूल के धारे। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर रहमत लाए। पाप और दुख के बादल मेरे सर पर रहमत लाए। तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जग की कोई ढूंढे। तुझसे प्यासा क्या मांगे बस, जग की कोई ढूंढे। जो जीवन जल तूने दिया हो, मन की प्यास बुझाए। जो जीवन जल तूने दिया हो, मन की प्यास बुझाए। कहना बिना जग में बिरता, राह कौन दिखाए। तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं पास लगाए। और हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं और हदीया जात को खुदा की हुजूरी में पेश करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फजल किया कि हम इकट्ठे होकर तेरी इबादत कर सकें। जो वक्त हमने हमदो सुना में गुजारा उसके लिए भी शुक्र करते हैं। तेरे कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो हमने एल्डर साहब के वसीले से सुना। खुदा आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस और हमारे दिलों में तेरे साथ वफादारी और ईमान की मजबूती रोज बरोज बढ़ सके। हम तेरे साथ फेलोशिप में रफाकत में आगे बढ़ सके। इन हदियात के लिए तेरा शुक्र करते हैं तो तेरे लोगों ने दी हुई बरकत में से तुझे लौटाया है। इसे कबूल कर, तमाम देने वालों को बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनिया को बड़ी खुशहाली बख्श दे। हमारी कलीसिया को एक गवाही देने वाली कलीसिया बना। और दुआ करते हैं खुदावंद के हमें कौमी सतह पर यीशु की खुशखबरी की मुनादी के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। हमें दूसरी कलीसियाओं के लिए भी बरकत का बायस बना। खुदावंद दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया में जो बेरोजगार हैं तेरे बेटे यीशु के नाम से वो रोजगार पाएं। और खुदावंद इस हफ्ते को हम सब के लिए मुबारक ठहरा। हमारी हिफाजत कर, कोरोना वायरस से हमें महफूज कर ले और हमारे हर एक काम में, हमारी आमदोरफ्त में, कामों में, मंसूबों में, इरादों में यीशु के नाम से बरकत आ जाए। उसी यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत
اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔